حقوق کی سب سے بڑی محافظ تم خود ہو. ناانصافی نہ ہونے دینا کبھی بھی اپنے ساتھ. بابا آپ میری فکر مت کریں، مجھے اپنا خیال رکھنا آتا ہے. آج کل بچے جو ہیں وہ بڑوں کی مرضی سے کہاں ہی رشتے کر رہے ہیں. گھروں سے باہر نکلتے ہیں، ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں اور شادی کے وعدے کرتے ہیں. اچھا بھائی ٹھیک ہے، تم لوگ اپنی بھابھی کو روم میں بٹھاؤ گے، کرتا ہوں پھر تم دونوں کا حساب کتاب. ٹھیک. میری اللہ میں مر گئی. ممی کیا ہوا آپ کو؟ ممی آنٹی تمہارے خود کو طبیعت ٹھیک ہے آپ کی؟ واسف آنٹی کو کیا ہوا ہے؟ آنٹی آپ ٹھیک تو ہے نا؟ اگر میں نے اس کو عبرت کا نشان نہ بنا دیا تو میرا نام بھی فریحہ خان نہیں. تم لندن یا امریکہ میں نہیں رہتی ہو جہاں تم طلاق کے بعد ایموشنل ڈیمیج کلیم کرنے کے لیے عدالت میں کیس کرو گی اور عدالت انصاف ٹوکرے میں رکھ کر تمہیں تھما دے گی. میرے سر میں درد ہو رہا ہے، میں آرام کروں گی. سوری بیٹا، شام سے کہہ رہی تھی اس کے سر میں درد ہے. میں دیکھتا ہوں اسے. بھابھی کو لے جاؤ روم میں، میٹھا کھلاؤ اور آرام کرنے دو. صبح ملتے ہیں بیٹا. چین اٹھ جاؤ، 12 بج رہے ہیں دن کے. یا اللہ، یہ ڈاکٹر نے کون سی ڈرپ لگا دی ہے مجھے؟ میری تو آنکھیں ہی نہیں کھل رہی ہیں. اور ہاں، باہر جو ہے وہ آسکر والے آئے ہیں بہترین ایکٹریس کا ایوارڈ دینے کے لیے تمہیں. آپ بھی نا طنز کرنے کا کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتے. ارے نہیں بابا، طنز کہاں کر رہا ہوں. میں تو سب سے بڑا فین ہوں جو قدرت نے تمہیں صلاحیت سے نوازا ہے. اور پھر میری صلاحیتوں کا سب سے زیادہ فائدہ بھی آپ کو ہی پہنچا ہے. اور اس میں کوئی شک نہیں، یہ بات تو ہے. اچھا سنیں، عالیہ کے گھر والے آ گئے ناشتہ لے کر؟ نہیں، وہ واسے نے ان کو کال کر کے منع کر دیا تھا کہ آنے کی ضرورت نہیں ہے، ممی کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے. یہ کیا بات ہوئی؟ طبیعت ہی تو ذرا خراب ہوئی ہے، میں کوئی مر تھوڑی رہی ہوں. بلائیں واسے کو. کہاں ہے؟ پوچھوں ذرا، میں خبر لوں اس کی. اور یہ رسم و رواج کے فیصلے کرنے کے لیے میں زندہ بیٹھی ہوں بھائی، ابھی وہ کیوں ڈیسیجن لے رہا ہے؟ آپ بھی کیوں خاموش رہے؟ مجھے اٹھایا کیوں نہیں آپ نے؟ ارے صبح سے 2 بار تمہیں اٹھا چکا ہوں، تم ہو کے اٹھنے کا نام ہی نہیں لے رہی. اور خیر ہے، ناشتے کی بات ہے، منع کر دیا سو کر دیا. نہیں بھائی، بات ناشتے کی نہیں ہے، گھر کے فیصلوں میں اہمیت کی ہے. میں نہیں چاہتی کہ عالیہ یہ سوچے کہ وہ یا اس کا شوہر اس گھر کا کوئی بھی فیصلہ کر سکتے ہیں. بھائی یہ میرا گھر ہے، یہاں صرف اور صرف میری مرضی چلے گی. چلو جب آئیں گے تو بات کر لینا. آئیں گے مطلب؟ کہاں گئے دونوں؟ ناشتے کے لیے دونوں باہر گئے. کیا؟ لیکن کیوں؟ ارے کوئی بات نہیں، آئیں گے تو بات کر لینا، پوچھ لینا ان سے. اور سنو پلیز، زیادہ اوور ایکٹ مت کرنا. یہ نہ ہو کہ بہو یہ سوچے کہ ساس ہر کام میں نیند میں ایک نکالتی. اور پتہ ہے نا واسے کتنا جذباتی ہے، ابھی نئے نئی شادی ہوئی ہے، باقی تم بہتر جانتی ہو. بس رہنے دیں، زیادہ امن کی فاختہ بننے کی کوشش نہ کیا کریں آپ. ارے واسے تو مرد ہے، اور مردوں میں ایسے فیصلے کرنے کی سمجھ نہیں ہوتی. یقیناً اسی نے پٹی پڑھائی ہوگی واسے کو. پہلے میری آنکھوں میں دھول جھونک کے اس گھر میں گھسائی اور اب اپنی منمانیاں کر رہی ہے. یہ نہیں ہونے دوں گی میں. آنے دیں ذرا ان لوگوں کو، ایسا دماغ درست کروں گی نا کہ زندگی بھر یاد رکھیں گے. میرا تو دماغ گم گیا ہے آپ کی باتیں سن کے. ارسلان شاہ، ہمت ہے تو باہر نکلو، میرا سامنا کرو. ارسلان شاہ، ارسلان شاہ باہر نکلو. ارسلان شاہ،
मैडम जी सर तो घर पर नहीं है। बकवास करती हो, झूठ बोल रही हो मेरे साथ। मैंने उसकी गाड़ी अभी बाहर खड़ी हुई देखी है, मुझे पता है वो यहीं घर पे छुप के बैठा है, डरपोक बुज़दिल कहीं का। उसको बोलो अगर मर्द है तो मेरे सामने आए। मैडम जी आप मेरी बात पर यकीन करें, वो घर पर नहीं है। क्यों करूं मैं तुम्हारी बात का यकीन? तुम सब के सब झूठे और मक्कार लोग हो। देखना पुलिस की चक्की पे सौंगी तुम सब लोगों को। आप यहाँ किस लिए आई हैं? कोई काम था? जायदा अंदर जाओ, तुम काम करो अपना। काम की बच्ची, तुम भी इस सारे चक्कर में शामिल हो ना? झूठ बोल रही थी मेरे साथ, मक्कार औरत। जल्दी से बताओ, जवाब दो। हाथ मत लगाना मुझे, पुलिस को बुलवा लूंगी। इतनी हिम्मत, तुम्हारा मैं गला ना दबा दूं? तुम क्या समझी थी अरसलान शाह से शादी करके उसकी जिंदगी से तमाम औरतों को बाहर कर दोगी? ये तुम्हारी खुशफहमी है। शुक्र अदा करो कि ये बात तुम्हें जल्दी पता चल गई। 4-5 साल बाद पता चलता तो क्या करती? मैं तो गरीब मुलाजमा हूँ, मुझे तो कोई भी 2-4 पैसे ज्यादा देगा, मैं उसकी चापलूसी कर लूंगी। ये अमीर लोग किसी के नहीं होते, जब दिल चाहता है काम से निकाल देते हैं। तुमने भी तो काफी दफा मुझे धमकियां दी थी काम से निकालने की, भूल गई? अब देख लो, मैं यही हूँ और तुम इस घर से तो क्या अरसलान सर की जिंदगी से भी जा चुकी हो। मैडम मेरी बात सुने, इसको नीचे करें। आप मेरी बात सुने। अरसलान सर मदिया मैडम के साथ थाईलैंड गए हुए हैं, जब भी आपको बाहर उनकी गाड़ी नजर आ रही है। आप इसको तो नीचे करें, मेरी बात समझें। अगर आपको मेरी बात का यकीन नहीं आ रहा तो आप घर की तलाशी ले सकती है। मेरी बात को समझें, इसको नीचे करें। मैं आपको बता रही हूँ, मैं आपको मेरा एक एक सामान 1 घंटे के अंदर घर पहुंच जाना चाहिए। ऑलराइट? अस्सलाम वालेकुम आंटी, आपकी तबीयत कैसी है? देख लो, जिंदा हूं। और तुम दोनों सुबह सुबह कहाँ निकल गए थे? मैं आपकी बहू को ब्रेकफास्ट के लिए लेकर गया था, लेकिन इससे साफ इनकार कर दिया। कहने लगी कि घर वालों के साथ खाऊंगी, तो इसलिए हमने टेक अवे करवा लिया। वासे ने अम्मा को भी मना कर दिया यहाँ आने से, आपकी तबीयत की वजह से। लेकिन उन्होंने नेक्स्ट वीक हम सबको इनवाइट किया है। ऐसी किसी फॉर्मेलिटी की कोई ज़रूरत नहीं है, उन्हें मना कर दो तुम, और हम सीधे साधे लोग हैं, ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है। हम सब जाएंगे तो अम्मा बाबा बहुत खुश होंगे, और उन्होंने ख़ास ताकीद की है कि आपको साथ लेकर आएं। वैसे डॉक्टर ने आपको कोई दवा दी है खाना खाने से पहले की? मुझे बता दें, मैं ला देती हूँ, उसके बाद हम सब मिलकर नाश्ता करेंगे। अरे भाई, मैं बीमार थोड़ी हूँ, वो तो बस थकन की वजह से अजीब ब्लड प्रेशर हाई हो गया था मेरा। वैसे कल आप बहुत प्यारी लग रही थी। मेरी दोस्त तो मान ही नहीं रही थी कि आप मेरी सास हैं। वो तो समझ रही थी कि आप वासे की बड़ी बहन हैं। अरे हाँ ना, और नहीं तो क्या। बहुत छोटी उम्र में मेरी शादी हो गई थी। मेरी कोई इतनी उम्र थोड़ी है, अभी इंटर ही किया और माँ बाप ने शादी कर दी, और 1 साल बाद ही वासे हो गया था। तुम्हें पता है, एक बार तो एक दुकान वाला हयात साहब को मेरा वालिद ही समझ बैठा था। रहने दे मम्मी, बाबा को अंडर एस्टिमेट कर रही है।
वो आज भी उतने हैंडसम दिखते हैं। जी नहीं, लेकिन उनसे तो मैं यंग लगती हूँ, ऐसी भी कोई बात नहीं है। चले मैं नाश्ता लगवाती। हाँ श्योर, आओ मैं तुम्हारी हेल्प करता हूँ। I think she's back. कहाँ गई थी तुम? तो आप तक खबर पहुंच गई। कॉल आई थी अरसलान की। क्या जरूरत थी तुम्हें वहां जाके तमाशा करने की? तुम्हें पता है कितने गुस्से में था वो? FIR की धमकी दी है उसने। और आप उसकी धमकियों से डर गई? मत भूलो फरिया, हम मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी में रहते हैं। हमारे घर में कोई मर्द नहीं है। थाने कचहरियों के चक्कर कौन काटेगा? मॉम, उसने जो मेरे साथ किया है वो आपको दिखाई नहीं दे रहा? धोखा दिया है उसने मुझे, मेरे पे हाथ उठाया, खड़े खड़े उसने मुझे तलाक दे दी, और वो वहां थाईलैंड में बैठकर अपनी बीवी और बच्चों के साथ पार्टी कर रहा है। ये कैसा जस्टिस है? फरिया, तुम्हें समझ क्यों नहीं आ रही है? सलान और उसके खानदान हमसे कहीं ज्यादा इन्फ्लुएंशियल हैं। हम उनके साथ लड़ाई झगड़ा अफोर्ड नहीं कर सकते बेटा। मॉम, उसने मुझे धोखा दिया है, यूज किया, उल्लू बनाया है मुझे, फरिया खान को। अच्छा, तुम रिलैक्स हो जाओ, तुम परेशान मत हो। और ये रो नहीं ना बेटा, मैं परेशान हो जाती हूँ तुम्हारे साथ। काश मॉम मैंने आपकी बात सुनकर वासे को ना छोड़ा होता, आज मैं उसके साथ कितना खुश होती। तुम पागल हो गई हो? अगर तुम वासे के साथ होती तो तुम डोमेस्टिक इश्यूज में फंस जाती। वासे तुम्हारे लिए परफेक्ट मैच था ही नहीं, और ना ही अरसलान साबित हुआ। अच्छा जाओ, तुम जाओ अपने कमरे में, रिलैक्स करो, अपना हुलिया सही करो, जाओ जाके। बाबा बहुत तारीफ कर रहे थे आपकी, जिस तरह आप शादी पे सिचुएशन को आपने संभाला है ना। अम्मा और पापा दोनों आपसे बहुत खुश हैं। अच्छा, तुम कहती हो तो मान लेते। वैसे तुम्हारे वालिदैन के रवैये से तो ऐसा कुछ नहीं लग रहा था। क्यों? ऐसा क्या कर दिया उन्होंने? नया अमीर दामाद जो घर में आ गया, हम गरीबों को कौन पूछेगा? बारात में भी, वलीमे में भी वासे इनसे मिले, वासे उनसे मिले, हर जगह वासे वासे ही हो रही थी। मैं तो वहां किसी कुर्सी या मेज की तरह ही था। पढ़ा है तो पढ़ा है, नहीं पढ़ा तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अब जिसकी शादी है उसको तो VIP प्रोटोकॉल मिलेगा ना। इसका ये मतलब नहीं है कि पुराने दामाद को भुला दिया जाए, उसे इज्जत ना दी जाए। वलीमे वाले दिन दुल्हन की फैमिली के लिए अलग से अरेंजमेंट था। मुझे तो किसी ने नहीं कहा वहां जाके बैठ जाए। वो तो शुक्र है कि अकरम आ गया, उसने मुझे बुला लिया, वहां जाके बैठा दिया। तुम्हारे बाबा को तो इतनी तौफीक भी नहीं हुई कि अपने दामाद को वहां जाकर बिठा दे। असफर, वो बड़े हैं, आपको उनका ख्याल रखना चाहिए था। मुझे ताने मत मारो, अच्छी तरह समझता हूं तुम क्या कहना चाह रही हो। तुम्हारे बाबा की एक एक पाई चुका दूंगा मैं। जैसे पहले वापस कर दिए। ज्यादा बकवास नहीं कर रही हो तुम? जुबान ज्यादा चलने लगी है तुम्हारी। असफर प्लीज मेरा हाथ छोड़ दे, मुझे पेन हो रहा है। मैं क्यों आपको झूठा कहूंगी? बहुत सुन ली तुम्हारी और तुम्हारे बाबा की बकवास। मेरे मुंह लगने की कोशिश की ना, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा।
मम्मी, आप भी आ गई। आए बैठे। अकरम इतना फनी है, हंस हंस के हमारे पेट में तो दर्द ही हो गया, है ना? सच में अकरम तुम बहुत फनी हो। हाँ, फारिग वक्त में इंसान और करे भी तो क्या करे, कुछ हंसी मजाक हो जाए तो वक्त अच्छा गुजर जाता है ना? मैं जरा बाहर जा रहा हूँ, थोड़ी देर में आ जाऊंगा। जाओ आलिया, तुम भी अपने कमरे में थोड़ी देर रिलैक्स कर लो, क्योंकि शाम में मेहमान आएंगे तो उनको भी कुछ वक्त देना पड़ेगा तुम्हें। जी आंटी। कितना समझाया था ना मैंने तुम्हें, लेकिन तुम्हारी मोटी अकल में मेरी कोई बात फिट नहीं होती ना। है? कौन सी बात? मैं कुछ समझी नहीं। यही कि भाभी के साथ ठी ठी ठा ठा करने, मुंह लगाने और घुसने की ज्यादा जरूरत नहीं है। अरे जरा सा फासला रखोगी तो रोब होगा तुम्हारा, और रोब होगा तो इज्जत मिलेगी, वरना सारी जिंदगी सुबह शाम इसकी खिदमतें करना और ताने भी सुनना, और फिर तुम्हें माँ की बात की कदर होगी। लेकिन भाभी तो इतनी अच्छी हैं, वो तो ऐसी नहीं लगती। अभी तुम्हारी इतनी उम्र नहीं है कि तुम्हें ये सारी बातें समझ आए, इसलिए जो कहती हूँ ना बस वही किया करो। अच्छा चले ठीक है, अब से ध्यान रखूंगी। मैं चलती हूँ। बैठो बैठो, और मेरी बात गौर से सुनो। आज मेहमान आएंगे, भाभी को एक लम्हे के लिए भी किसी के साथ अकेला नहीं छोड़ना तुमने। कोई भी ऐसी वैसी बात करे तो बात फौरन पलट देना। हाँ? ये खानदान वाले जो होते हैं ना, ये तो होते ही आग लगाने के लिए हैं। अभी बहू घर में आई नहीं, फौरन भागे चले आते हैं कंसुइयां रखने के लिए। मम्मी प्लीज, अब मुझे रिवायती नंदू जैसा तो ना बनाए। बकवास बंद करो, वरना यूनिवर्सिटी छुड़वा के ना शादी कर दूंगी मैं तुम्हारी। वैसे भी शादी में कुछ लोगों ने तुम्हें पसंद कर लिया है, मैं सोच रही हूँ कि चाय पे बुला ही लूं उन्हें। मम्मी प्लीज, मैं बाहर जाऊंगी मास्टर्स करने के लिए अभी। अरे कर लेना मास्टर्स भी, शादी के बाद करना सब कुछ, मेरी बला से। मेहमान चले गए सारे? जी बस अभी गए हैं। आपके सर का दर्द कैसा है? आप? ठीक है, सर का दर्द भी। मैं आपके लिए मेडिसिन और चाय ले आती हूँ, फिर आपका सर दबा दूंगी। तुम्हें पता है, कुछ लोग दवा की तरह होते हैं, थोड़ी देर उनके साथ टाइम स्पेंड कर लो तो तबीयत ठीक हो जाती है। तुम मेरे लिए दवा की तरह, मेरे पास बैठ जाओगी तो तबीयत खुद ब खुद ठीक हो जाएगी। आज मुझसे वादा करो, तुम कभी मुझे छोड़कर नहीं जाओगी। क्या मेरी मोहब्बत में कोई कमी रह गई है जो मुझे वादा करके प्रूव करना पड़ेगा? नहीं, बस मैं सुनना चाहता हूँ, मुझे सुनकर अच्छा लगेगा। ठीक है, तो आलिया वासे अपने होशो हवास में ये वादा करती है कि मैं वासे को कभी नहीं छोड़ूंगी। तुम्हारे नाम के साथ अपना नाम सुनकर बड़ा अच्छा लगता है मुझे। वैसे आपको भी ना मुझसे एक वादा करना पड़ेगा। और वो क्या? जिस तरह अभी आप मुझसे मोहब्बत करते हैं, आप हमेशा मुझसे इसी तरह प्यार करते रहेंगे। कोई शक है? नहीं, लेकिन मुझे भी सुनकर अच्छा लगेगा। बड़ी चालाक होती जा रही हो तुम, वैसे बातें बनाना खूब आ गई तुम्हें। हाँ, क्योंकि ये हुनर मैं आपसे सीख रही हूँ। किस तरह बातों में उलझाकर आपने मुझे फंसा लिया था। क्या करूं? तुम्हें जब पहली मर्तबा देखा था ना, तो ऐसा लगा जैसे सारी कायनात हम दोनों को आपस में मिलवाने में लग गई है। सारी कायनात का तो पता नहीं, लेकिन फिजा का जरूर कहूंगी। उसके बगैर ये सब कुछ मुमकिन नहीं था। ओह यस यस, इंडीड, ऑल क्रेडिट गोज टू फिजा। वैसे फिजा बहुत नाराज है हम दोनों से। कह रही थी कि शादी के बाद तुम लोग घर आए ही नहीं। अच्छा,
तो चलो आओ, अभी चलते हैं घर, मिलकर आते हैं। सीरियसली? ओह यस, सीरियसली। ठीक है, मैं फिर आंटी को बता देती हूँ कि हम जा रहे हैं। नहीं इट्स ओके, मम्मी सो रही होंगी, हम बस जाएंगे और फौरन से वापस आ जाएंगे। ठीक है। फराज, बस क्या बताऊं, मैं अपनी बेटी की वजह से बहुत परेशान हूँ। मेरी बेटी के साथ बहुत बुरा हुआ है। आंटी मैं तो कहूँगा जो हुआ अच्छा हुआ। शुक्र है कि अरसलान का जो भी सीक्रेट था वो जल्दी रिवील हो गया। अगर यही बात कुछ महीने बाद पता चलती तो शायद ज्यादा परेशानी होती। हाँ, बस मैं तो ये सोच रही हूँ कि जितनी जल्दी फरिया की इद्दत पूरी हो, किसी अच्छे घर में उसकी शादी कर दूँ। बहुत अच्छा आइडिया है। आप उससे बात करें, उसे ज़हनी तौर पर तैयार करें। वो इतनी अच्छी लड़की है कि उससे कोई भी लड़का खुशी से शादी करने के लिए तैयार हो जाएगा। फराज, क्या तुम फरिया से शादी करोगे? देखो, जो भी हालात हैं उसमें तुमसे बेहतर तो उसका और कोई साथी नहीं हो सकता। आंटी मैं फरिया से। हाँ? क्यों? इसमें हर्जी क्या है? देखो, फराज, तुम्हारे अंकल भी तुम्हें बहुत पसंद करते थे और हमारा जो कुछ भी है वो सब फरिया का ही तो है। लेकिन आंटी, देखो बेटा, मैं तुमसे कोई जबरदस्ती नहीं कर रही हूँ और ना ही करूंगी। फरिया जिस ट्रॉमा से गुजर रही है उसे तुमसे बेहतर कोई नहीं समझ सकता और तुमसे बेहतर कोई पार्टनर भी नहीं हो सकता। बेटा, अभी वो इद्दत में है, तुम्हारे पास काफी वक्त है। तुम अच्छी तरह से सोच लो, फिर फैसला करके मुझे बताना। आंटी आप मुझे आजमाइश में डाल रही हैं। देखो बेटा, शादी तो तुम्हें करनी ही है ना, और फिर तुम जिस लड़की में इंटरेस्टेड थे वो तुम्हारी लाइफ से जा चुकी है। मुझे यकीन है फरिया और तुम एक दूसरे के लिए अच्छे पार्टनर साबित हो गए। लेकिन मैंने कभी भी फरिया को इस नजर से नहीं देखा। देखो, आज या कल तुम्हें शादी तो करनी ही है ना, तो फिर फरिया क्यों नहीं? अगर तुम किसी अननोन लड़की से शादी करोगे, उससे बेहतर है कि तुम एक ऐसी लड़की से शादी करो जिसे तुम अच्छी तरह से जानते हो। आई एम श्योर तुम दोनों बहुत खुश रहोगे। फरिया तुम्हें कभी मायूस नहीं करेगी। अच्छा, मैं आपको सोच के जवाब दूंगा। ठीक है बेटा, मैं तुम्हारे जवाब का इंतजार करूंगी। खुदा हाफिज। बहुत अच्छा हुआ आप लोग आ गए आज, कितना अच्छा लग रहा है। हाँ ना, दिल खुश हो गया देखकर बच्चों का। वासे भाई, वैसे ये बड़ी बुरी बात है। आपने तो ना शादी के बाद मेरी बहन को मुझसे दूर ही कर दिया है। तुम तो ऐसे बातें कर रही हो जैसे शादी को कोई 6 महीने गुजर गए। खुद पूछ लो, मैं तो बहुत कहता हूँ, लेकिन आलिया का यहाँ आने को दिल ही नहीं करता है। जी नहीं, वो ना सिर्फ लिहाजो मुरवत में रह जाती हैं। बिल्कुल भी ऐसी बात नहीं, तुम खुद पूछ सकती हो। अभी भी खुद इसरार करके लेकर आया हूँ। क्यों आलिया, बताओ। हाँ, ये बात तो है। मुझे वासे ने ही कहा था कि चलो तुम्हारी अम्मा और बाबा के घर चलते हैं। लो जी, जब अपनी सगी बहन अपनी ना रही तो औरों से क्या गिला करे। बस कर दो तुम। दिन में 3-4 कॉल्स कर लेती हैं मैडम, और अगर मैं नहीं भी आई तो क्या हुआ? तुम कौन सा आ गई? ये तो बहुत वैलिड पॉइंट है। बाय द वे, मम्मी आप लोगों को डिनर पर इनवाइट करने का कह रही थी। बेटा इस फॉर्मेलिटी की क्या जरूरत है? बेटा हम किसी दिन ऐसे ही आ जाएंगे। हाँ नहीं, कोई आए या ना आए मैं तो जरूर जाऊंगी। अच्छा भाई, चली जाना, लेकिन कोई चाय कॉफी का इन लोगों को पूछोगी या ऐसे ही बातों पे टरखाओगी हमारी तरह? नहीं अंकल, इस फॉर्मेलिटी की कोई जरूरत नहीं है, हम डिनर करके हैं। अच्छा बेटा, ये बताओ कि तुम्हारी अम्मी की तबीयत कैसी है? मम्मी की तबीयत ठीक है आंटी। उन्हें गुस्सा आ जाए या थकान हो जाए तो ब्लड प्रेशर ऊपर नीचे हो जाता है। आलिया तो घर में सबकी फेवरेट हो चुकी है, हर कोई आलिया आलिया करता रहता है।
माशाल्लाह। आलिया, किचन में चले कॉफी बनाने? मेरा बिल्कुल मूड नहीं है, तुम जाओ और कॉफी बना कर लो। मेहमान हूँ मैं तुम्हारी। ये क्या बात हुई? चलो ना। जाओ बेटा, चलो ना, मैंने कुछ बातें भी करनी है। मुझे भी बातें करनी है इससे। अच्छा बाबा। अच्छा जाओ बेटा, जाओ चलो। इसके साथ। मैं और कैसा चल रहा है काम वाम? क्या हाल है तुम्हारी सास के? ये लो, मैं रख कर दूंगी ना। कोई नया ड्रामा तो नहीं खड़ा कर दिया? बुरी बात है, वो कोई ड्रामा नहीं था, उनकी वाकई तबीयत खराब हो गई थी। तुम कह रही हो तो मान लेते हैं, वरना अक्सर औकात औरतें अपने बेटों की शादी के बाद ना उनकी अटेंशन गेन करने के लिए हरकतें करती हैं। बस तुम तरह बच के रहना। फिजा, तुम भी ना कोई कॉन्स्पिरेसी थ्योरी निकाल लाती हो, पर ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ ठीक है, वो थोड़ी अलग मिजाज की खातून है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि वो जानबूझकर हॉस्पिटल चली जाएंगी। अलग मिजाज नहीं, टेढ़ा मिजाज बोलो। बाबा ने इतना महंगा लेना देना किया, लेकिन मजाल है जो उन्होंने एक भी चीज की तारीफ की हो। उल्टा हर चीज हर बात में नुक्स ही निकाल रही थी। तुम देख लेना, बुढ़ापे में ना ये दीमक फिल्म वाली समीना पीस ज्यादा जैसी हो जाएंगी। प्लीज फिजा, आहिस्ता बोलो, कहीं वासे ना सुन ले। वो वैसे भी अपनी मम्मी के बहुत चहीते हैं। फिक्र मत करो, तुम्हारे प्रिंस चार्मिंग बहुत दूर बैठे हैं, उन तक मेरी सुरीली आवाज नहीं जाने वाली। वैसे तुम लोग हनीमून पर कब जा रहे हो? जाना तो वलीमे के नेक्स्ट डे था, लेकिन आंटी की तबीयत की वजह से हमने 2 वीक्स आगे बढ़ा दिया। मैं भी नेक्स्ट मंथ। ये क्या बात हुई? हनीमून पे तो फौरन शादी के बाद जाना चाहिए ना। और ब्लड प्रेशर कोई बीमारी थोड़ी है, तुम लोग तो ऐसे बिहेव करे जैसे उनको कोई मोजी बीमारी हो गई हो। तौबा है, अल्लाह ना करे, कैसी बातें कर रही हो? वासे ने अगर सुन लिया ना, वो भी क्या सोचेंगे तुम्हारे बारे में। मैं क्या तुम्हें पागल लगती हूँ? अरे भाई, मुझे मालूम है यहाँ तुम्हारे मेरे सिवा कोई भी नहीं है, तुम बेफिक्र हो जाओ। जानती हूँ, वैसे नई नई शादी हुई है ना, इसलिए थोड़ा कॉन्शियस रहती हूँ। और सच में मुझे आंटी का मिजाज समझ नहीं आया। कभी कभी अपना मूड इतना अच्छा कर लेती हैं और कभी कभी एकदम से बेजार हो जाती हैं। मुझे तो ये चाइल्डहुड ट्रॉमा लगता है। खैर, आज के लिए तुम्हारे ससुराल की गीबत बहुत हुई, बाकी आइंदा इंशाल्लाह। कल रात तुम लोग बड़ी देर से घर वापस आए, सब खैरियत तो है? एक्चुअली आंटी, वो हम बाबा की तरफ चले गए थे। अच्छा, मुझे तो पता ही नहीं चला। खैर वासे, तुम्हारे तो सर में दर्द था ना बेटे? जी मम्मी, वो ठीक हो गया था, इसलिए आलिया को ले गया था। अपने घर वालों को बहुत मिस कर रही थी। मेहमानों से मिलते वक्त तो तुम्हारे सर में दर्द था, उनके जाते ही ठीक हो गया? मम्मी ठीक हो गया था, इसलिए बाहर चला गया था। आंटी, मैंने तो वासे से कहा था कि जाने से पहले आपको इन्फॉर्म कर दें, लेकिन इन्होंने कहा कि शायद आप सो गई होंगी। मेरे बच्चे घर से बाहर हों तो मैं कैसे भला सो सकती हूँ? नहीं तो याद है आपको, मैं, भाई और जुनैरा रात को आइसक्रीम खाने गए थे। अरे चाबी हम लोग घर पे भूल गए थे। भाभी 15 मिनट तक हम घंटियां बजाते रहे, उसके बाद इन्होंने दरवाजा खोला और इतनी बातें सुनाई जब इनकी नींदें खराब हुई। याद है तुम्हें? हाँ, तो जब इतनी दवाएं लेकर सोऊंगी तो आंख कैसे खुलेगी भला मेरी? और मेरी तबीयत भी तो तुम लोगों की फिक्र की वजह से ही खराब होती है ना। अच्छा कोई बात नहीं बेटा, अगली बार जब भी जाओ तो बता देना पहले। पता है ना, तुम लोगों की मम्मी का दिल बहुत छोटा है, बहुत जल्दी परेशान हो जाती है। फिर 2 दिन तक ब्लड प्रेशर बढ़ा रहता है, सर के दर्द की वजह से 2 दिन तक सबके सर में दर्द करती है। तो और क्या, इतनी तबीयत खराब होती है, मेरा दिल इतना घबराता है कि हाथ पांव छूटने लगते हैं जैसे मेरे। और ये जो मैं गुस्सा करती हूँ ना, इसे मेरा गुस्सा नहीं, मेरी फिक्र और परेशानी समझा करो। इसे कहते हैं कि जब अपना सिक्का खोटा हो ना, तो किसी बाहर वाले को क्या कहे इंसान।
मैं तो कहती हूँ इसकी जल्द से जल्द नौकरी कराएं। ये जब तक घर बैठा रहेगा ना, इसी तरह मौका बेमौका, बात बेबात, उल्टा सीधा बीच में बोलता ही रहेगा। जो भी है, अगर तुम्हें बहू को सुनानी ही थी तो वासे के सामने कुछ नहीं करना था। जी नहीं, मैंने जानबूझ के दोनों के सामने बात की है ताकि मैं दोनों को रियलाइज करवा सकूं कि इस घर के फैसले वो नहीं कर सकते। ये मेरा घर है, यहाँ सिर्फ मेरी मर्जी चलेगी। और आपको पता है, आपकी वजह से सिर्फ मैं इतना लिहाज कर रही हूँ इस लड़की का, वरना जब से मुझे ये पता चला है ना कि उसका वासी के साथ अफेयर था, तब से यकीन करें मेरा दिल चाहता है मैं खड़े खड़े चुटिया से पकड़ के इस लड़की को बाहर निकाल दूं। बहुत ही चालाक और मक्कार लड़की है, सीधी बनी फिर रही होती है पूरे घर में इस तरह से, मक्कार कहीं की, मिसनी गुन्नी। इतना लिहाज रखा है ना मेरा, थोड़ा बेटे का भी करो, आहिस्ता बोलो, दीवारों के भी कान होते हैं। वैसे ये हनीमून पर कब जा रहे हैं? कभी भी नहीं। क्या मतलब? मतलब ये कि मैं इतने रोड़े अटकाऊंगी। इन्हें क्या लग रहा था मुझे पागल बनाएंगे, मेरी आंखों में धूल झोंकेंगे? अरे आप देखिएगा, मैं इन दोनों को नहीं छोड़ूंगी। वासे को भी जवाब देना पड़ेगा मुझे कि उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। देख लो, बहू की नफरत के चक्कर में बेटा बदजन ना हो जाए। आप बेफिक्र नहीं, ऐसा भी नहीं है कि अब बहू की नफरत में मैं अपने बेटे से बिगाड़ लूं या वो मुझसे बदजन हो जाए। अब मुझे तो फिक्र है जुनैरा की शादी अब जल्दी से हो जाए। ये एकदम से आपको बैठे बैठे जुनैरा की शादी की टेंशन क्यों हो गई भाई? आप तो कहते थे बेटी को बहुत पढ़ाएंगे। इंसान है, जिंदगी का क्या भरोसा। अच्छा है ना जितना जल्दी अपने तमाम फराइज से सदोश हो जाए। यही बात तो मैं शुरू से कहती आई हूँ। शुक्र है कि अब आपकी अकल में भी ये बात आ गई। मेहमानों से मिलते वक्त तो तुम्हारे सर में दर्द था, उनके जाते ही ठीक हो गया। क्या सोच रही हो तुम? कुछ नहीं, बस ऐसे ही। मैं सोच रहा था कि हम नेक्स्ट वीक हनीमून पर चलते हैं। एक्चुअली समर ब्रेक की वजह से नॉर्दर्न एरियाज में काफ़ी रश होगा, तो क्यों ना हम दुबई या बाकू चलें। पासपोर्ट तो वैलिड है ना तुम्हारा? हाँ बिल्कुल। और बाकू तो बहुत अच्छा ऑप्शन है। 2 साल पहले कॉन्फ्रेंस के लिए गई थी मैं वहाँ। इट्स लाइक अ मिनी यूरोप। नहीं, इंशाल्लाह हम भी यूरोप जाएंगे। वहाँ पे रेंट की गाड़ी लेकर पूरा यूरोप बाय रोड देखेंगे। इंशाल्लाह ज़रूर। तुम मुझे अपना पासपोर्ट दे देना, मैं वीज़ा के लिए अप्लाई कर दूंगा। मुझे इनसे आंटी के रवैये के बारे में बात करनी चाहिए या फिर शायद अभी नहीं? क्या सोचेंगे कि मैंने आते ही शिकायतें शुरू कर दी? व्हाट? हम आप ऐसे सोच भी कैसे सकती हैं? यही तुम्हारे हक में बेहतर है। मेरे हक में क्या बेहतर है और क्या नहीं, उसका फैसला मैं खुद कर सकती हूँ। आप प्लीज परेशान मत हो। अच्छा, मेरी जिंदगी में तुम्हारे अलावा और है कौन? तो क्या मैं तुम्हारे लिए परेशान भी ना हूँ? मॉम, मेरे साथ ये इमोशनल ब्लैकमेलिंग मत करें प्लीज। ये ब्लैकमेलिंग नहीं है, वक्त की जरूरत है। तुम्हारे बाबा के सडन डेथ के बाद जिंदगी परखने का मेरा तरीका बिल्कुल बदल गया है। इसीलिए मैंने हमेशा तुम्हें शादी करने का, सेटल होने का मशवरा दिया है। फराज में वो तमाम क्वालिटीज हैं जो एक अच्छे शौहर में होनी चाहिए। आपने तो कहा था ये क्वालिटीज अरसलान में भी है, तो फिर क्या हुआ? मेरी लाइफ सेटल होने के बजाय बल्कि और डिस्टर्ब हो गई है। अरसलान को एक बुरा ख्वाब समझकर भूल जाओ। मम्मी, मैं कोई एआई रोबोट नहीं हूँ जो बटन दबाया और सब कुछ रेज हो गया। ऐसे नहीं होता। मैं मर गई कल को तो फिर क्या करोगी? ये जालिम दुनिया अकेली औरत को खा जाती है। दोस्त, रिश्तेदार कोई काम नहीं आते, बहुत मुश्किल हो जाती है। अभी तुम जवान हो, अपनी माँ के साथ रहती हो,
इसलिए शायद तुम्हें ये बातें समझ में नहीं आ रही। मॉम प्लीज ये मरने की बातें करके मुझे मजीद सैड ना करें। मुझे पता है फराज अच्छे हैं, लेकिन पता नहीं, आई एम कंफ्यूज्ड। ओके, टेक योर टाइम, लेकिन बस वादा करो कि तुम फराज के बारे में सोचोगे जरूर। ओके, आई विल।